Hi, this is Abhik Bhattacharya from Outlook Magazine. Today we are at Jhabua district. It's in the western MP. This region is known as the Malwa-Nimar region. Actually, Malwa-Nimar region has extreme significance in terms of election because Malwa-Nimar region has 66 seats, among which 22 seats are Adivasi dominated seats. So it's very common in this region that whoever wins the Adivasi constituencies, they win Madhya Pradesh. So it was in 2003, if I correctly remember, that while the result was getting declared during 2003, Digvijay Singh continuously was waiting for the result of Jhabua district. That what is going to happen in Jhabua? If they lose Jhabua, they knew that they are going to lose Madhya Pradesh, and the same thing happened. But it is throughout 2003, 2008, 2013, 18, this trend of this Malwa-Nimar region and the domination of Adivasi seats have always been there. But even after that, this district, Jhabua district, has become the most poverty-stricken, the most poor district in terms of Niti Aayog's recent report in Madhya Pradesh. 49.62% people in Jhabua district belong to below poverty line. So a district where there is huge Adivasi domination, more than 80% people belong to Bhil community, a district that matters in the state politics, a district that in 2018 brought the leaders like Rahul Gandhi, Amit Shah. What is the condition currently of that district? To understand that what is the politics of this Malwa-Nimar region and how the Adivasi politics is getting played over here by Congress and BJP and recent player, we have to mention Aam Aadmi Party, though we don't think it's going to have much effect on the electorate, but still they are a new player in this field. We will have a conversation with senior journalist Virendra Singh Ratore. We will ask him that what are the major political scenarios that actually dominate the situation over there in the Malwa-Nimar region and how it is going to play a big role in the Madhya Pradesh State Assembly election. So, नमस्ते वीरेंद्र जी, नमस्कार. सो आप हम लोगों को पहले ये बताइए कि मालवा-निमार रीजन में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 22 ईस्ट सीट है और ये सीट में जिसका डोमिनेशन रहेगा मध्य प्रदेश उसका ही जीता है. तो इसके बारे में क्यों ये रीजन इतने इम्पोर्टेंट है, आदिवासियों का क्या क्या मुद्दा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा. देखिए, अगर हम इस पूरे रीजन की बात करें, यहाँ पे जो 22 सीटें आती हैं एस से, तो यहाँ अभी भी जो बेसिक नीड्स हैं उनको लेकर अभी भी यहाँ का जो आदिवासी वो जद्दोजहद कर रहा है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खेती के लिए ज़मीन कम है, क्योंकि लगातार परिवार बढ़ता जा रहा है, तो जो खेती हो की ज़मीन है वो डिवाइड होती जा रही है. पहले मान लीजिए अगर किसी परिवार के पास 10 बीघा ज़मीन थी, तो जब परिवार बढ़ता गया तो वो घट के किसी के पास 2 बीघा रहे, किसी के पास 1 बीघा रहेगी. तो उसमें कई तरह के मान लीजिए परिवार 4 महीने हैं तो उनके लिए वो पर्याप्त ज़मीन नहीं. ऐसे भी हो रहा है कि तो खेती की ज़मीन है नहीं, रोज़गार को कोई बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर है नहीं, तो लोगों के लिए चाहे आप झाबुआ की बात करें, अलीराजपुर की बात करें या धार की बात करें, पलायन सबसे बड़ी समस्या है. कारण खेती की ज़मीन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए एक परिवार के लिए. दूसरा, रोज़गार के लिए कोई बड़े उद्योग नहीं, खासकर झाबुआ अलीराजपुर की अगर बात करें तो ये एक इशू यहाँ पर रहता है. रोज़गार का भी सबसे बड़ी चीज़ जो होती है रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए या तो काम हो या फिर खेती हो जिससे वो अपनी मतलब आजीविका चला सके. तो आप ये जो गरीबी 49% से भी ज़्यादा गरीबी, इसके वजह भी यही है कि खेती से लेके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है. आप मुझे याद है आप हम लोग को बता रहे थे कि 2012 साल में कोई मऊ साइन हुआ था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ. आप थोड़ा सा उसके बारे में अगर बताइए. देखिए, मुझे ज़्यादा याद आ रहा है कि 2012 में जब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट थी इंदौर में हुई थी, तब झाबुआ के लिए काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को उसके लिए MOU साइन हुए थे. लेकिन वो MOU साइन होने के बाद धरातल पर कुछ भी कोई बड़ा उद्योग, कोई बड़ी इंडस्ट्री झाबुआ ज़िले में नहीं है. अगर वो आती तो ना केवल झाबुआ का इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता, बल्कि लोगों को काम भी मिलता. और हो सकता है कि आज हम जो देख रहे हैं पलायन, उसमें कमी होती है. मैं नहीं कहता हूँ कि 1-2 इंडस्ट्री लगने से पूरी पलायन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें कमी ज़रूर देखी जाती है. तो जो झाबुआ ज़िले में अभी जैसे आप बता रहे हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है 49% लोग गरीब हैं यहाँ पे, वो अलग अलग तरीके से इसमें अलग अलग मेंशन किया हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें शामिल. तो इसमें ये
डेफिनेटली चीज़ें हैं कि यहाँ भाई अगर हम जोग्राफी की बात करें तो भाई भौगोलिक स्थिति झाबुआ की काफ़ी अलग तरीके की है। पानी की उपलब्धता, पेयजल है जो पीने का पानी, उसके लिए लोग सफ़र करते हैं, वो लोगों को टाइम पर नहीं मिल पाता है। अनाज को लेकर काफ़ी समस्या होती है। राशन, गवर्नमेंट राशन, फ्री राशन देने की बात कहती है, लेकिन ज़मीन पे वो उसमें लेकर कई तरह की दिक्कत आती है। हमने पिछले 6 महीने में मैं खुद 50 गाँव के ऐसी, मतलब हमारे पास में ऐसी शिकायतें, स्टोरी पहुँची हैं कि जहाँ कहीं 3 महीने से अनाज नहीं मिल रहा, कहीं 4 महीने से अनाज नहीं मिल रहा। इस तरह की स्टोरी पहुँचती है। तो पानी यहाँ का इशू है, रोज़गार यहाँ का इशू है, अनाज नहीं मिलना यहाँ का इशू रहता है। तो लोग डिपेंड रहते हैं क्योंकि काम है नहीं। काफ़ी सारे आप देखें, आप खुद भी जैसे लगातार इस पूरे झाबुआ में अलग अलग गाँव में आप लोग गए हैं, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ आप उन घरों में आपको जो बुजुर्ग लोग हैं वही मिलेंगे, बाकी जितने भी यंग लोग हैं, जवान लोग, वो सब मजदूरी करने गुजरात। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यही, ये सिर्फ 1-2 गाँव की स्टोरी। आप झाबुआ जिले किसी भी गाँव में चले जाइए, वहाँ पे आपको इस तरह घर मिलेंगे जहाँ से बुजुर्ग माता पिता घर पे हैं, तो जितने भी यंग हैं वो सब मजदूरी करने गुजरात के। कारण यही है, यहाँ पे काम नहीं है, खेती की उतनी ज़मीन नहीं है, और परिवार को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसा कहीं से तो पैसा कमाना पड़ेगा। So, as you rightly said, Virendra ji, that this is the major issue. There are several issues among which the first is the migration. As there is hardly any employment opportunity, people flee, people escape Jhabua. They escape this Malwa-Nimar region and go to Gujarat for more money, and that's very natural because there is hardly any industry. And the secondly, there is another issue, that is water, because there is a huge water crisis. While we were traveling throughout different villages, we found that the Jal Jeevan mission of Narendra Modi ji, though it certainly give some sort of pipes to all these households, but none of the taps actually are in a working situation. Whenever our stories will come, you will be able to see what is the current situation. So in this situation, in front of Kantia Bhil, one of the biggest and tallest leaders of Bhil community, we have